आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आई जेएनयू कैंपस से। देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जहां पर 20 घंटे का वक्त बीत गया है, लेकिन छात्रों ने वीसी समेत कई अधिकारियों को बंधक बना रखा है। कल दोपहर से यह आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद से प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इस हद तक जा पहुंचा कि छात्रों ने वीसी दफ्तर का घेराव किया और उसके बाद उन्हें कल से अब तक बंद रखा गया है। रात बीत गई लेकिन बाहर नहीं आने दिया गया। इस बीच कई बार कोशिशें हुई वीसी और उनकी टीम की तरफ से कि वो बाहर आ सके, छात्रों से बात कर सके, लेकिन छात्र बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। इंतहा तो ये हो गई कि जब वीसी ने कुछ लोगों की तबीयत का भी हवाला दिया। कई ऐसे लोग जो उम्रदराज हैं, जिन्हें डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन उनकी इस परेशानी को भी छात्रों ने नजरअंदाज कर दिया और दफ्तर के सामने छात्र जमीन पर लेट गए। किसी को बाहर नहीं आने दिया गया। इस बीच आज तक को वीसी एम जगदीश ने वीडियो संदेश भेजा है जिसके जरिए छात्रों से तो अपील की ही गई है, साथ ही ये भी कहा है कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए। और गायब छात्र नजीब अहमद से भी अपील की है कि वो जहां कहीं भी हैं निडर यूनिवर्सिटी वापस लौट आए। As you know, we have been illegally confined in the administration building by some agitating students of JNU since yesterday 2:30 p.m. The whole night we tried our best to convince the students about the steps that we have taken in locating the missing student Najib Ahmad. For the entire university community, the missing case of Najib Ahmad is of great concern. We want Najib Ahmad to be located as quickly as possible so that he can come back to the university and continue with his academic activities. But however, the students, instead of discussing with us and to resolve this issue, they have started this illegal confinement of the university officials. We had several rounds of meetings with the students. I myself personally went to the students and we invited them also for discussions, and in the discussions we have made it very clear to them that as soon as this incident was reported to us, we have contacted the police. We have written several letters to the police requesting them to expedite the process of locating Najib Ahmad. We in fact also made an appeal on our website and also through media to Najib Ahmad to come back to the university without any fear. Students have demanded that there has to be an inquiry to look into the incident that took place in the hostel. We immediately formed a proctorial committee which is looking into this entire incident and inquiring, and we assured to the students that if anybody is found guilty as a result of this inquiry, they will be punished according to the university rules. We have agreed to all the demands of the students of writing to the police, writing an appeal to the Najib Ahmad through the media, forming an inquiry committee and to expedite the inquiry process. In spite of all this, the students have resorted to this illegal confinement of the university officials, and they are spreading lies in the social media saying that they have not confined us. The fact is, for anybody to see, if you come to the university, the students are lying on the floor and they are not letting us to get out of this administration building. तो वीसी ने क्या कहा, ये पूरी बात आपने सुनी। लेफ्ट छात्र संगठन इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहा है, उनके ही अगुवाई में ये पूरा घेराव यहाँ पर किया गया। हम आपको जेएनयू कैंपस भी ले चलेंगे, अपने संवाददाता की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले हम रुक करेंगे वसंत कुंज थाने का, जहां से हमारे संवाददाता चिराग गोठी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। चिराग, यहाँ पर वीसी ने तो इन तमाम संभावनाओं से इनकार कर दिया कि अभी फिलहाल पुलिस से कॉन्टैक्ट करने की कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे पुलिस इस पूरे मामले को अभी देख रही है, सुपरवाइज कर रही है, और क्या अभी नजीब अहमद की तलाशी को लेकर भी किसी तरह की कोई कोशिशें और प्रयास हुए हैं? देखिए, पुलिस की इसमें जो है वो 2 पॉइंट्स पर वर्क कर रही है। एक तो जो उनको तलाशने की नजीब अहमद को, वो कोशिश लगातार की जा रही है। बाहर जो भी सीसीटीवी है उनको खंगाले जा रहे हैं। जहां तक कैंपस के अंदर की बात है तो पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि अभी उन्होंने हॉस्टल्स या पूरे कैंपस को सर्च नहीं किया है। वजह उसकी साफ है कि उनको अभी तक किसी तरह का जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरी बात, जहां तक बात है बंधक बनाने की, तो पुलिस का कहना है कि अभी कोई शिकायत इस तरह की उनके पास नहीं आई है। अगर इस तरह की शिकायत आती है तो जाहिर तौर पर पुलिस वहां पहुंचेगी और जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी इस मामले में। तो
पुलिस इस समय थोड़ी देर पहले जो जॉइंट सीपी लेवल के ऑफिसर हैं वो खुद MHA पहुंचे हैं और पूरी जो सिचुएशन है वो गृह मंत्रालय के अधिकारियों को ब्रीफ की है, क्योंकि कल खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आलोक वर्मा जो पुलिस कमिश्नर उनसे बात की थी और पूरी सिचुएशन जानी थी। उसके बाद आज सुबह जॉइंट सीपी लेवल के ऑफिसर वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी सिचुएशन ब्रीफ की है। इस समय भी वहां मीटिंग चल रही है MHA में, जिसमें बताया गया किस तरह से जो घटनाक्रम JNU का रहा, नजीब अहमद के सिलसिले में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, तमाम बातें जो है वो गृह मंत्रालय के अधिकारियों को शेयर की है। सिचुएशन यही है कि अभी भी जो वहां पर जो छात्र है वो बाहर डटे हुए एडमिन ब्लॉक के बाहर। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि कोई कंप्लेंट VC की तरफ से या किसी भी अधिकारी की तरफ से उन तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक बात है JNU कैंपस के अंदर घुसने की, तो पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कर रही है तो ऐसे में कहीं भी वो जा सकती है, किसी के तरह का उनको वो बाध्यता नहीं है, रोक नहीं सकते उनको। अगर उनको जांच करनी है, उनके पास पर्याप्त सबूत हैं आगे बढ़ने के, तो जाहिर तौर पर वो आगे प्रोसीड करेगी। लेकिन अभी तक जैसे मैंने बताया कि एक तो कंप्लेंट नहीं हुई है बंधक वाले मामले में, जबकि जो पहला मामला है जिसमें जो 5 दिन से नजीब अहमद गायब है, पुलिस का कहना है कि जब तक वो हॉस्टल्स को सर्च नहीं कर लेते अभियान तब तक सघन ये चलाया कहना जाए। बहुत और फिलहाल नामुमकिन चिराग है। आपका शुक्रिया, मैं आपसे अपडेट इसके बाद में दूंगी। लेकिन JNU में जिस तरह से स्थिति लगातार बनी हुई है, 20 घंटे का वक्त बीत गया है और अब तक VC और जो बाकी मेंबर्स वहां बंद हैं वो बाहर नहीं आ सके हैं। कई कोशिशें भी की गई, इसके बावजूद भी ये नहीं हो पाया। जानकर आपको हैरानी होगी कि छात्र रात भर दफ्तर के बाहर डटे रहे, यहां तक कि वही बिस्तर डाल के छात्र सो गए ताकि कोई बाहर ना आ पाए। बातचीत की कोशिशें हुई लेकिन ये कोशिशें बेनतीजा रही। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसे निकलवाओ बाहर, मेरे बच्चे को निकलवाओ, लोगों से ढूंढ के लाओ। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, बहुत बोला, उस पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इन्होंने बहुत मारा उसे। एक एक शब्द दर्द के लिफाफे में लिपटा हुआ। हर आंसू अपने बेटे का पता पूछ रहा है। मैं पीटने वाला कोई है, सब यहाँ घूम रहे हैं। हर लफ्ज में फरियाद है, मेरे बच्चे को लौटा दो। कुछ कर रहे हैं वो, उसे निकलवाओ बच्चे को, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं चल जाऊँ यहाँ से अपने बच्चे को घर लेके। ये उसी नजीब की माँ है जो पिछले 5 दिन से गायब है और अब जिसके लौट आने के इंतजार में उसका परिवार JNU की 4 दीवारी के बीच बैठा है। नजीब की मां कहती हैं कि दिल्ली पुलिस से नहीं हो रहा है तो वो केस CBI या क्राइम ब्रांच को दे दें। इनके बस का नहीं है तो क्राइम ब्रांच को दें, CBI को दें, मेरा बच्चा लाए ढूंढ के। अब जस्टिस फॉर नजीब की आवाज JNU कैंपस के कोने कोने से आ रही है। कहीं नजीब के लिए पोस्टर पर तेवर लिखे हैं तो कहीं तिलमिलाहट। लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन नजीब की मांग को लेकर JNU प्रशासन को दोष दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि JNU प्रशासन नजीब की गुमशुदगी को लेकर बेहद लापरवाह है। बहुत सारा जगह पे होता है, वाइस चांसलर खुद पेरेंट्स को बुला के पूछता है। यहाँ पे तो एक इतनी घटना घटी है, इसको लेके वो 4 दिन से लगातार यहाँ बैठी हैं बिना खाए पिए। उससे मिलने का वक्त है वाइस चांसलर को। मतलब ये दिखाता कितना इनसेंसिटिव एटीट्यूड है। नजीब के गायब होते ही पूरे कैंपस में एक अलग तरह की राजनीति का रंग गहरा रहा है। लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन ABVP को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो दूसरी ओर ABVP के समर्थक भी नजीब को जल्द वापस लाने की मांग तो कर ही रहे हैं, मगर तरीका दूसरा है। हमारा ये उनसे दरख्वास्त है कि वो कैंपस में ढूंढना चाहिए उनको। शायद वो जिस तरीके से उमर खालिद और अनिर्बान कैंपस में छुपे थे, शायद वो कैंपस में छुपे हों। ABVP चाहती है कि पूरे JNU परिसर की तलाशी ली जाए। उन्हें शक है कि जैसे अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद कैंपस में ही छिपे थे, वैसा ही कुछ नजीब के साथ भी हो सकता है। मतलब ये कि नजीब की गुमशुदगी ने JNU में राजनीति को हवा दे दी है। लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन ABVP और NSUI अपने अपने दांव चल रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने नजीब का पता बताने वाले को या तलाश करने वाले को 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। अब पुलिस से सिर्फ एक ही मांग हो रही है कि वो नजीब की गुमशुदगी के राज का पर्दाफाश जल्द करे। अमरदीप और अनुज मिश्रा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।